معزز ناظرین السلام علیکم، ہوں بلال نذیر ایک نئی ویڈیو کے نال اج جس شخصیت کا بارہ میں تم جانکاری حاصل کریں گا جو ویڈیو ہم تاری خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ شخصیت ویسے تک کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، یہ وہ آواز ہے جڑی قوم کو درد لے کے پیدا ہوئی۔ یہ آواز ہے ہمارا مرحوم دادا جان عبدالرحمان بڑھانا صاحب کی۔ وہ آج تک ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ان کی یاد ہمارے نالوں نال ہیں، اور ان یاداں تازہ کرنے واسطے ان کی اس برسی کا موقع پر ہم اپنے بزرگوں کا کچھ خیالات تھوڑے نال سانجھا کریں گا کہ انہوں نے کس طرح دیکھو، کس طرح پائے اور کیا محسوس کیو۔ اپنا تعارف خود انہیں کی آواز میں آؤ سونا سارا۔ کرنا کے گران نیچی میں پیدا ہوا، میں اوپر اسکول پڑھی، کرنا کا اسکول کی جو تعلیم حاصل کی، اس کے بعد فوج بھی چلے گی۔ قبل اس کے کو اپنی ساری زندگی یا جو میں خدمات یا جو توقعات میری قوم نال تھی وہ سارے سامنے پیش کروں۔ میرا پورا نام عبدالرحمان بڑھانا ہے۔ جس وقت میں اس سے میٹرک پاس کی کہ جب ماسٹر وغیرہ بن جاؤ اس وقت اور کے تو ماسٹر بڑی چیز مانی جائے گی، تو میں نے اسے ایک دور یاد آئے، اور اکثر میرے بات دور سنا ہوا بتاؤں کہ گھر کو منڈل استری تن کو منڈل سوٹ، گھر کو منڈل استری تن کو منڈل سوٹ، زمین کو منڈل میل رن کو رنپور۔ اس دورہ بھی کیا نہیں ہے کہ راجپوت کوئی لفظ نہیں، رنپور تو میں نے وہ دور یاد ہے، وہ فوج بھی چل گئی، فوج بھی چلے گی، بدتمیزی کے ساتھ آج اپنی فوج بھی تھی، تو میں ایسا کچھ دیکھی قوم کی حالت بڑی ناگفتہ پہ۔ اس وقت کرنا میں اتنا غیر شد افسر ہے، کرنا نہیں اتنا نہیں ہے، کشمیر بھی شاید افسر ہے، ایجوکیشن ہے، بہترین ایجوکیشن ہے، مکانات بہت اصل ہیں، مگر ایک پسماندگی ماری ہے کہ ہم نے گاڑی 6 مہینہ واسطے بند کر۔ اگر کار کی خاتون عزت مند ہے، باغیرت ہے، اس کی اولاد بھی اس کا بہن پارٹی باغیرت ہوئی۔ ایک دن میں ایسا ڈرامہ دیکھی، میں اپنی والدہ نے کہ تم الیکشن نہیں لو، ایک مان کے علاوہ اور کوئی سزا دے سکتے مانے، کہیں میرا حکم ہے اگر کوئی قتل بھی ہو جائے تو تناج کو نہیں۔ تو اس نے یہ لفظ جس وقت کہی کہ میں یہ اندازہ لائے کہ میرے پیچھے ایک عمالیہ پہاڑ نہیں بلکہ 7 عمالیہ پہاڑ کھڑا ہو، اور یہ تھرو آؤٹ اس جدوجہد میں کبھی جو محسوس نہیں کیا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے۔ سب ان قوم میں بڑا کٹ لوگ ایسا ہوئے کہ جڑا قوم کو درد لے کے ہی اگر چلیں اپنی زندگی کو مقصد بنا لے، اور ورنہ اپنا واسطے تو ہر کوئی جی ہے، لیکن جڑوں کہ مظلوم قوم واسطے ہے، ہر پاسوں ستائی ہوئی قوم واسطے اس کی بہتری تو بہبودی واسطے اپنی زندگی جی ہے وے مسالی وے، اور ایسا شخص سماج کے اندر، معاشرہ کے اندر بہت ہی کٹ پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش بھی ایسا دور میں ہوئی تھی جس لئے ہر پاسوں ظلم و ستم تھو، گجرانا دبوڑے لتاڑے جا رہے تھو، ان کا اوپر ظلم و ستم تھا، چاہے وہ جاگیرداری نظام کو تھو یا شاہکاری نظام کو، یا کہ وقتی حکمرانہ کو، ہر کوئی انہاں نہ کھوری نظریں دیکھے تو، ہر کوئی ان کے نال بیر رکھے تو، اور ایسا سپوت جس لئے سامنے آیا انہوں نے اپنے قوم کو بیڑو چاہو اور اس نہ ڈائی دین کی کوشش کی۔ عبدالرحمان بڑھانا صاحب کرنا تو ایک آواز لے گیا اٹھیا، اور پھر یہ آواز قانون ساز کونسل توڑی پہنچی، اور اتوی اپنی قوم کے بارے یہ گل کرتا رہا، ان کی بہتری تے بہبودی واسطے اور اپنا علاقہ کی ترقی واسطے یہ گل کرتا رہا۔ جد بھی کدے انہوں نے موقع ملے، چاہے وہ مرکزی وزراء کے نال ملیا، چاہے وہ ریاستی وزراء یا حکمرانہ نہ ان کی ملاقات ہوتی رہی، اپنے علاقہ کی ترقی کا گل یہ ضرور کرتا رہا بلا لاس مذہب و ملت۔ سابق وزراء جناب عبدالغنی کوڑی تے ذوالفقار علی صاحب اپنا خیالات ہمارا نہ سانجھا کرتا ہوا، چودھری عبدالرحمان بڑھانا بارے ان کی یاداں نہ تازہ کرتا ہوا، اس طرح فرماویں۔ 2-3 دفعہ مجھے موقع ملا، کچھ باتیں انہوں نے کی اور کچھ سٹیپ جو لیے میں ان سے یہ ہے بڑا متاثر ہوا تھا۔ تو میں جس سے بھی ملا، چاہے وہ ہاں ان کے ایریا میں یا جہاں وہ ملا کرتے تھے، یا ان کی سوسائٹی جہاں ہمارے دودھی گجر جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا ملنا جلنا تھا، تو وہ ہر ایک آدمی ان کو بڑے اچھے لفظ سے یاد کرتا تھا۔ اب باہمت تھے، اس وجہ سے میں ہمیشہ ان کو مارشل کہا کرتا تھا، تو واقعی وہ اس خوبی کے مالک تھے۔ اور میں جب وہاں ان کے کرنا ایریا میں گیا، میں نے ایک بات دیکھی، ان کا پیار محبت، چاہے وہ ہندو تھا، چاہے وہ مسلم تھا، چاہے کسی برادری کا، خاص کر کرنا میں نے دیکھا وہاں پہاڑی برادری اور گجر برادری، اور پہاڑی برادری جو ہے وہ وہاں ان کی تعداد زیادہ ہے، ان لوگوں نے آپس میں رشتے کیے ہوئے تھے، اور یہ بڑے پیار اور محبت سے وہاں جو ان کا ماحول دیکھا رہتے تھے۔ تو یہ بنیادی انسان کی بات ہے کہ جہاں بھی رہے وہ پیار اور محبت سے رہے، اور یہی بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے۔ چودھری عبدالرحمان بڑھانا ہماری قوم کے بڑے
बाहिम्मत और बॉर्डर एरिया के रहने वाले थे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़माने में MLC भी रहे। मुझे उनके बॉर्डर एरिया करनाल में जाने का मौका मिला। वो उनके गांव का नाम नीचियन गांव था। मुझे वहाँ जाके बड़ी खुशी हुई। एक तो वो बड़े बाखलाक थे, क्योंकि एक मोमन में दो चीज़ें जो होनी बहुत ज़रूरी हैं, एक बाखलाक इंसान हो और एक सुलहरामी हो। और जिसमें ये दोनों बातें हों, इसका मतलब है उसका ईमान है जो है मुकम्मल है। तो मुझे बड़ी ये देख के मैं महसूस कर रहा था कि ये दोनों बातें जो थे वो उनमें बड़ी उत्तम दर्जे की मैंने वहाँ उनमें पाई। वो जम्मू भी आया करते थे। उनका तल्लक बड़े हनफी सिलसिला के बड़े अलमबरदार पक्के अकीदा के थे। उनका रूहानी तल्लक जो था वो हमारे हज़रत मियाँ राज वली साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से तल्लक था। मुझे मौका मिला बडाना साहब को बहुत करीब से देखने का। मेरे वालिद मिनिस्टर हुआ करते थे और वो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, और उस वक्त वो उनके मेरे वालिद के पास आया करते थे, और बहुत एक जिंदा दिल किस्म के इंसान थे जो अपनी कौम का दर्द रखते थे, जो अपने इलाके का दर्द रखते थे, जो गरीबों की बात करना चाहते थे और जो गरीबों की बात करते थे। मैं जब 2015 में मिनिस्टर बना मुफ्ती साहब की सरकार में, तो उस वक्त भी बहुत करीब से वो भी PDP में हुआ करते थे और मुझे उनके साथ मिलके काम करने का मौका मिला। बहुत ईमानदार, दयानतदार, नेक शख्स थे वो, और अपनी इना पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। एक बहुत खुददारी वाली बात करना, एक बहुत जुर्रतमंदाना बात करना और इक़्तिदार वाली साइड को छोड़ के चले जाना बड़ी बात थी अपने आप में। तो अल्लाह तबारक ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, जन्नत अल फरदौस अता फरमाए, उनको करवट करवट जन्नत नसीब हो। और जो उनकी औलाद है, उनके बच्चे हैं, मैं यही खुदा से दुआ करता हूँ कि वो उनके नक्शे कदम पे चलें और इस दबी कुचली अवाम का बिलखसूस कश्मीर वादी में ज़रूरत है। दूर दराज इलाकों में, बॉर्डर एरियाज़ में, जहाँ हमारे लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो भी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलें और आगे बढ़ें। दिल रहमान रमीम बडाना जड़ा था वे गुजरां का दलीप कुमार था। हीरो अरुण की एक चाल डाल थी और बड़ा अच्छा अदीब, बहुत बड़ा लीडर, और उसके नाल बड़ा बाजुरत आदमी था। मेरी बड़ी मुलाकात रही उन्होंने नाल। 10वीं में मुझे पढ़ूँ तो 1987 की गल है, और जम्मू में एक कॉन्फ्रेंस थी तो मैं रमीम बडाना साहब ना बोलता हुआ देखियो। जिसलिए हम कल्चरल अकेडमी में 94 में लगो तो मैंने पता लगो कि ये तो हमारा दलीप कुमार है, और वे बिचों अकेडमी आवे में था और बड़ी सोहनी गल करें था और बड़ा जज्बा वाला आदमी था। हम करनाल ना जड़ो है ना, करनाल का इलाका नाम तो बडाना साहब नाम बक करके नहीं देख सकता। मैं उन्होंने बड़ा करीब तो देखियो, मेरे नाल बड़ी उन्होंने शफकत और बड़ी मोहब्बत थी, और कई प्रोग्रामों में उन्होंने सदारत की। हमारी बहुत सारी जी बॉडी है कल्चरल अकेडमी की, उसके बीच में मेंबर रहा, और उन्होंने यह थी कि एक बड़ो विजन है उन्होंने को थो, और मिठी ज़बान थी, ठेठ ज़बान थी उन्होंने को, और नाल ये थो कि अदब को ख़ास तौर के ऊपर उन्होंने मोहब्बत थी एकेडमी का, कि किताबां के नाल बड़ो लगाव थो। उनकी कमी जड़ी है ना वह हर वेले खलती रहेगी, गुजरी अदब ना, गुजरा ना, और ख़ास तौर के ऊपर कश्मीर वादी में तो एक लीडरशिप को जड़ो काटो थो, उसने वे और काट कर गए। वादी कश्मीर की सरजमीन बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है। इस धरती ने मुख्तलिफ शख्सियत पैदा की हैं, जिनमें औलिया अल्लाह, दानश्वर, समाजी कारकुन, सियासी और समाजी शख्सियत पैदा की हैं। इत गुजर कौम की मुख्तलिफ शख्सियत पैदा हुई हैं, जिन्होंने समाज का उभरन वास्ते, उसने उठान वास्ते, उनमें बेदारी पर पैदा करने वास्ते
अपना अहम रोल अदा किया। इनमा चौधरी अब्दुल रहमान बडाना MLC साहब का नाम थे। मेरी पहली मुलाकात बडाना साहब के नाल कौंसल में हुई और उस वक्त जिस वक्त मैं उन्होंने देखो हूँ हैरान रह गया कि उनकी इतनी पुरवकार शख्सियत थी और इतना दिलकश शख्सियत थी कि जिस तरफ फिजे था लोग उन्होंने बड़ा ठहर के तके में, और अक्सर लोग के में कि ये तो फिल्मी हीरो दिलीप कुमार का डुप्लीकेट कापी हैं। मैंने उन्होंने नाल गलबात करने को कुछ देर नज़दीक ते वो को मिलो और मैं देखो कि उन्होंने गरीब लोगों का वास्ते काम करने को और उन्होंने उठान को बड़ो जज्बो थो। वे अक्सर गल करें में कि हमारी जड़ी गुजर कौम है इसमें बड़ी नाखवानदगी है, पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है, इसने ऊपर उठान वास्ते के किया जा सका और के हम एक्टिविटीज़ कर सका। और मैंने याद है कि अक्सर वे कौंसल में गरीब तबका का जड़ा मुश्किलात थी उनका ना उभारता रहे था, उनकी मुश्किलात ना उभारता रहे था, उनका अजाला करने वास्ते हमेशा वे हर एक के कोल चलिया जे में था। आज वे हमारा दरमियान में नहीं है। उन्होंने खराज अकीदत पेश करने को बेहतरीन या तरीक़ो है कि उनका जड़ा ख्वाब था उन ख्वाबों में हम जड़ा खाको उन्होंने थो उनमें हम उन रंग परा। डॉक्टर निसार सर्जन रजौरी तो थाना मुखातब हाँ। जनाब मरहूम अब्दुल रहमान बडाना साहब MLC नाल मेरी मुलाकात 1977 में जम्मू में हुई। उस वक़्त हम MBBS कर रहा था। मेरा दोस्त डॉक्टर रशीद, डॉक्टर मुश्ताक और डॉक्टर यूनुस साहब मेरा नाल था। हम अपना कई इशू लेकर उन्होंने मिलना था और वे हमेशा हमारी मदद करने उससे तैयार रहे था। वे एक बड़ा आला पाया गया लीडर, एक अदीब और बहुत बड़ा मफक्कर था। अपनी गलबात वे बड़ी बेबाकी ना रखे था और उन्होंने दो इशू बड़ा इम्पॉर्टेंट तरीका से लिया हुआ था कि गुजर कौम की एजुकेशन और मोबाइल नोमैडिक ग्रुप तो गुजरां में उन्होंने सेटलमेंट को इशू खुसूसन जरा जम्मू में दोधी गुजर था उन्होंने इशू उन्होंने बड़ा ज़ोर शोर ना लिया तो उन्होंने सेटलमेंट वास्ते उन्होंने बहुत कोशिश करी थी। हमने एक बार मौका मिलो उन्होंने राजेश पायलट साहब मरूम अपनी एहलिया रमा पायलट का नाल आया हुआ था। वे वैष्णो देवी गया हुआ था फर्स्ट टाइम MP बनने तो बाद। उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो गुजर कम्यूनिटी ताल्लुक़ रखे था या दूसरा दारामंद जम्मू में ज़ेर तालीम था या मेडिकल कॉलेज में था, वे सब लोग बुलाया और उन्होंने मिलाया। और जब हमारा इशू था उन्होंने टेकअप किया। स्कॉलरशिप का मसला या दूसरी प्रॉब्लम थी हॉस्टल का मसला था, वे उन्होंने टेकअप किया। चलती शैलिंग का दौर पार का जितना भी लीडर था करना का सब ने शेल्टर ले ली श्रीनगर में बाकी जगह, मगर बनाना साहब करना नहीं आते, उसने करना नहीं छोड़े जुड़े थोड़ा इजाफा करना चाहूँगी। ये जो तुमने सही फरमाया कि पहला ही तो वे इनकलाबी जहनीत का मालिक था कि अब्दुल रहमान बडाना साहब कई साल पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस में MLC रहे हैं। उसके बाद कई और पार्टियों ने चेंज की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीनियर लीडर इस वक्त भी उन्हें बड़ा इज्जत नाम याद करें। और हर बार इनकी जड़ी तकरीर हुई थी, ये बहुत अच्छा मकरर था और कोई नहीं कहता कि ये बडाना साहब ने कोई ग्रेजुएशन नहीं की या कोई नहीं की। बड़ा बड़ा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जबान की बारीकियाँ बारह उतना नहीं इलम रखने जितना बडाना साहब रखा था जी। तो हम पहले वो परफेक्ट नजर आया था, इतना मजाहिया था जी, इतने माहौल करें था कि रोता भी आते था। जनाब रहमान बडाना साहब तम एक बहुत बड़ी सियासी ते समाजी शख्सियत है। जिस तरीका नाल कैसरुद्दीन कैसर साहब ने समाज की खिदमत की, इस तरीका नाल तम ने भी अपनी ज़िंदगी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो अगर हम इसमें तकाबली मनाजरों करा कि कैसरुद्दीन कैसर साहब ने जी कंट्रीब्यूशन की उन्होंने एक फील्ड में की, तम दूजी फील्ड में करता रहा। तो इसमें जी दो फील्ड हमारी कवर हुई और बडाना साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन में कियो, तीजी फील्ड में कियो और इन्होंने पुलिस का ऐसा डिपार्टमेंट में काम कियो कि जिसमें मिनिस्टर को भी हिसाब लेना पे। तो तुम दसो कि मुश्किलात किस तरह की हमें काम करता हूँ, खिदमत करता हूँ। देखो जी, कैसर साहब एक कलेक्टर था जी। जिस वक्त वो होश में आए मैं सुने कि उन्हें
जलसा बुलाए, जलसा के बाद उन पर सियासी तशद्दुद किया गया, तो वो मैदान बिछाए, यानी उनको दौरो काम पूरा करने वास्ते। और पहली गल यह है जनाब कि मैं सारी करना भी गोई जबान भी गल की है लोगों नाल, मुसीबत की तुमने गल की, कदम कदम पर मुसीबत। हमारी बरादरी में जिन कुछ शख्सियतों पर फख्र है उनमें मरहूम अब्दुल रहमान बडाना साहब भी। उनने वक्त को नबज पछान कर गुजरा ने एक खास किस्म की सुजाग रुत को एहसास दिलाया, जिसकी बदौलत पूरी कौम ने अपना वजूद को नए बुलाने में मदद मिली। तहसील करना, जिला कुपवाड़ा तो फिर पूरा जम्मू व कश्मीर का मुख्तलिफ इलाका में अपनी खुददारी तो समाजी हमदर्दी का जज्बा का नादा खास पहचान काम करने के बाद उन्होंने रियासती कानून साज काउंसिल का रुकन की हैसियत में अवामी खिदमात अंजाम देने को मौका मिले। इस दौरान मुख्तलिफ सतहों पर उनकी रहनुमाई रियासत का मुख्तलिफ इलाकों का तस्लीका के खास तौर पर गुजरां का काम आई। रमीन तखल्लुस का वाली अब्दुल रहमान बडाना साहब फर्द शनास होने के नाल फन शनास भी था। गोजरी जुबान और सकाफत का हवाला ना मुनक्कद होने वाली हर महफिल की उनने रौनक बढ़ाई। गुजरा तो गोजरी को कोई भी दर्दी इसी शख्सियत का एहसान कदम नहीं पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हूँ गुलाम सरवर चौहान, रिटायर्ड SSP। अब्दुल रहमान बडाना साहब ने गालिबन सन 1978, 79 या 80 तो वाक़िफ़ हूँ। बडाना साहब उस वक्त MLC में था। हम उन्होंने गुजरा वो दलीप कुमार गाँव में था। बतौर MLC उन्होंने हमेशा गुजरा की गल की। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में थी गुजरा की, उन्होंने बोलना और गुजरा की गल करनी। वे हमेशा चाको चौबंद रहे था। वज़ाकता कलाम बड़ो शाइस्ता, बड़ो अच्छा मदब्बर। और फिर मेरी मुलाकात जड़ी है काफ़ी अरसा तो बाद पीर मकबूल साहब को हुई। वे आखिरी दौर में ज़्यादातर खुदा दोस्त हो गया। मेरा को उन्हें खराज अकीदत पेश करने वास्ते यही गल है कि ऐसी हस्ती बार बार नहीं मिलती। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, जो था करीब तो कहते थे संग दिल भी उसे, हुआ जो दूर तो लगता है जाने जा वो शख्स। करना की नामवर हस्तियां में चौधरी अब्दुल रहमान बडाना भी शामिल है। करना की तामीर और तरक्की में उनको बड़ा रोल है। बड़ा ही हाजिर जवाब ते मुकर्रर था। अदब नाल भी लगाव थो। उर्दू ते गोजरी का शायर रमीम उनको तखल्लुस थो। उनका वालिद को ना नासिरुद्दीन बडाना ते माँ को ना जान बीबी थो। अब्दुल रहमान बडाना ने ज़माना तालिब इल्मी में स्कूल में मास्टर की लापरवाही ते तालीम को मेहार बेहतर बनाने वास्ते लड़का उकसाया ते हड़ताल भी करवाई है। खुल के सियासत में 1972 में आया। चौधरी अब्दुल रहमान बडाना गोजरी ते उर्दू का शायर था। उनको एक गीत बंजली न मार रह के दूर सजना आ जा रे रेडियो पे आज भी नशर हुआ है। मैं काजी अब्दुल हमीद कुरैशी मोहतरम मरहूम अब्दुल रहमान बडाना साहब की खराज अकीदत के तौर पर अपने ताज़ा तरीन इशार पेश करना चाहूँगा। बडाना अब्दुल रहमान सुकूते बेमिसल था सारे इलाके का। वो पैकर था ज़राफ़त का, शजाहत का, सहावत का। अदब और शायरी से गहरा ताल्लुक़ था।
अब्दुर्रहमान बडाना का तखय्युल और तसव्वुरात में कोई सानी ना था बडाना का। दुआएं हासिल थी बडाना को अपने अब्बा और अम्मा की, दुआएं हासिल थी बडाना को अपने अब्बा और अम्मा की। अकलौता बेटा था बडाना, पर दर्जा रखता था कवि जमात का। सियासत और रियासत में मकाम बडाना का मुकद्दम था। बडाना इनकलाबी था, बुलंदी पर था नाम उसका। भूल जाए ज़माना बडाने को, ये गैर मुमकिन है। और आखिरी दिन में भी इन्होंने अपना इलाका में सड़कों की बेहतरी वास्ते गल की और यही मांग रखता रहा कि हमारा इलाका ना जो है वो तरक्की का नक्शा बनाने जाए और इतनी अनपढ़ता न खत्म करने वास्ते तालीमी सहूलत दी जाए, सेहत सहूलत दी जाए और रसद वसाइल की बेहतर सहूलियत दी जाए ताकि यो इलाकों बाकी इलाका नाल जुड़ गए अगे निकल सके। सबसे पहली बात यह है कि आपने देखा जहाज में आती हुई कि ये जो पहाड़ है दरमियान में हमारे और कश्मीर की, ये सर्दियों में कमोबेश 10-15 फुट बर्फ से ढक जाता है और हमारी करना की इस वक्त बजट डिमांड है कि हमें टनल दी जाए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने टूर नोट में इस चीज को नंबर 1 पे उठाएंगे और गवर्नर साहब से कह के हमारी जो मांग है इसको पूरी करेंगे। हमारा ये जो इलाका है पहाड़ी है, इसमें सड़क बनती है, बर्फ पड़ती है, बारिश आती है, फिर सड़क खराब हो जाती है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि करनाल को एक स्पेशल यानी लुक देकर इसको सड़कें इसकी जो है हमको ठीक किया जाए। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। ये दुनिया फानी है, हर एक ने अपनी अपनी बारी पर आना तो जानो है। ये सिलसिला इसी तरह चलता आ रहा है। जिंदा तवे हुए जेड़ा अपनी याद लोगों का दिल में छोड़ जे, लोगों का दिल में बस जे। अब्दुर्रहमान बडाना साहब वे शख्सियत हैं जेड़ा आज तक लोगों की दिल में बसे हैं और आज तक लोग उन्हें याद करने लगा और हमें उम्मीद है कि आने वाला टाइम में भी लोग उन्हें याद करता रहेगा। जिंदगी का आखिरी दिन में जी उन्हें कुछ गल कही, नसीहत करी, वसीयत करी, उनकी एक निकी जी झलक करिए निकी रुझाक है। अगले सिरे देखी लकड़ी उसने फट मारिए, खून आए, फिर चाक अंदर सट के डंड करिए। हर चीज कमरा बिछो, जो चीज जरूरत है, मतलब मेहमान आ रहे चावल जरूरत है, आलू मार जरूरत है जी, और जो भी चीज जरूरत है कमरा बीच नेहरा बीच बस। मियां जी हम ये दुनिया देखा ना जी, या कोई दुनिया नहीं, कोई नहीं सर, बिल्कुल।